So, hello students. So today I discuss further the important concepts and some questions. So see, last time I had told you that how to solve the questions related to the mirror. Like if magnification is given to you, how to take the sign of the magnification and how to draw the ray diagram. Then how to get the position of an object if magnification is known and the focal length of the mirror is known. So the similar kind of questions are in the lenses also. I had told you the ray diagram pattern of mirrors as well as of lenses. Now in the lens, like you have 1 upon V minus 1 upon U equals 1 upon F. And magnification for the lens is V over U. Usually in the 10th class, you write it like H of I upon H of object. So when you write H of I upon H of the object, you need to write these things with the proper sign. Like magnification is supposed given to be 2. For example, for a lens, it has been told that you want to make 3 times bigger and real image. You want to make 3 times bigger and real image. So 3 times bigger is all right. Now real means what? It will be inverted. In a convex lens, this will be what? Inverted. So magnification is what? Minus 3 not plus 3. Right? So even if you write in the form of x and 3x, this x and this what? Minus 3x. So magnification b over u will be equal to what? Minus of 3. So before I give you the example for this, I tell you the sign convention which is applicable for the mirrors also. Whether you have a lens or you have a mirror, the sign convention is there is a principal axis. So all the distances which are measured, distances are always measured from the principal axis. So if a distance is measured above the principal axis, if a distance is above the principal axis, it is positive. It is, if it is below the principal axis, it is negative, right? So this is true for the mirrors as well as for the lenses. Now next thing is what? All the distances are measured in a lens. All the distances are measured in a lens from the optical center and in the mirror from the pole. And in the mirror, they're measured from what? Pole. So you see, if a distance is like there's the object distance, and to measure the object distance, you'll start from the optical center. Now you're going opposite to the direction of incident ray. This is the direction of incident ray. You'll start measuring from here, not from here. You'll start measuring either from the optical center of the lens or for the mirror from the pole. So if you go in the measurement of a distance, if you go opposite to the direction of incident ray, it is negative. So in this case, the object distance is what? Negative. And suppose the image is formed here, then to measure the distance from the optical center, you are going in the direction of incident ray. You are going in what? In the direction of incident ray. So this distance will be what? Positive. So this is true for the mirror as well as for the lens, that when you measure a distance, in the direction of incident ray, it's going to be positive. Opposite to the direction of incident ray is what? Negative. And all the distances will be started measuring from the pole or the optical center. So now you see the exactly similar question what I had given you example in the mirror. Like there's a convex lens, focal length 30 centimeter. They say what is u if image is 3 times bigger and real. Now you'll start thinking what? When is the image 3 times bigger in the lens? So you know when the object is between focus f and 2f, then the image is bigger. And also when the object is between the optical center and the
focus, then also the image is bigger. But when the object is between the optical center and the focus, the image is virtual. And they are asking for what? Real image. So when the object is between the focus and 2f, f and 2f, the image is bigger as well as what? Real. And that is what? Inverted. From this, you got to know that it is what? Inverted. So according to question, m is v over u, and that equals what? Minus 3. Not plus 3, it is what? Minus 3. So v equals what? Minus 3u. Now we have 1 upon v, minus 1 upon u equals 1 upon f. So 1 upon v is minus 3u, minus 1 upon u equals 1 upon f. Focal length for a convex lens is what? Positive. So this is positive 30. You'll solve for the u and you'll get that u is equal to minus of 40 centimeter. That means when the object you'll keep it 40 centimeter from the lens, the image will be formed 3 times bigger, real, and obviously it has to be what? Inverted also. Is that clear? So now I give you one example in each. You see, just one example in each. If they say for a concave lens, focal length is 30 centimeter, object distance u is 20 centimeter, find v, right? So you see, when the examiner give you the value of a parameter like they say object is a 20 centimeter distance, examiner will not give you the sign convention. Sign convention you need to take, right? So for this you have 1 upon v minus 1 upon u plus 1 upon f. Now 1 upon v minus 1 upon u. U is negative, as I told you now the convention. So this what? Minus 20. And concave, in our convention, the focal length for the concave lens is what? Negative minus of 30. So from this you will solve this. 1 upon v is equal to minus 1 upon 30. And this is what? Minus minus plus. So in that side it will become this plus, in that side it will become negative minus 1 upon 20. So obviously it is clear from here that v will be negative. You'll take the LCM of 30 and 20. You'll get the value of v. V will be negative. Negative value of v means what? The object and the image are in the same side. So when for the lens, the object and image are in the same side, then that is what? Virtual. So it will be virtual image. Now you see, I give you one example for the convex mirror also. In the convex mirror, if focal length is say 30 centimeter, object distance u is given to be 20 centimeter, or object distance here they may give any value. It's not key, it should be inside the focus. It's any value, say 40 centimeter, find v. So again, you'll apply what? Mirror formula. 1 upon u plus 1 upon f. Now 1 upon v minus 1 upon u, u is minus 40, so I'm keeping it negative, is equal to 1 upon f. For the convex mirror, focal length is positive. So now see, you have 1 upon v is equal to 1 upon 30 plus 1 upon 40. Here, because see, both the terms are positive, so when you solve, v will be negative, v will be positive, and v positive means what? On the back side of the mirror. V positive means what? On the back side of the mirror. So on the back side of the mirror, the image formed will be what? It will be virtual. It will be what? Virtual. What will be the size of the image that you can find by what? You get the value of v. You have the value of u. So magnification is what? Minus of v over u. Magnification is what? Minus v over u. So that is, you'll keep the value, you'll find the magnification. And from the magnification, that is what? H of I upon H of object. So if H of the object is known, you can find the value of what? H of image. Could you understand this? You see, I make that clear. Look at this. This say 120. So this becomes 4 plus 3, that is 120, that is 7 upon 120. This is what? 7 upon 120. So we have here v equals to 120 upon 7. Now if say the object length is given, h of the object is say 4 centimeter. Then say magnification m is minus of v over u. So minus of v over u,
minus of. Why I'm telling you this in writing? So that you never make any mistake in the sign convention. Minus V. So minus, in place of V, you will write what? 120 upon 7. In place of U, you will write what? So you see, V is coming to be what? Positive. So here you should keep V. There's a formula minus V over U. But when you keep the value of V, you keep it with the proper sign that you got positive, so you keep it positive. U is negative. So U is negative means what? How much is U? Minus 40. So this is minus 40. That means it becomes minus will become plus. So that will become 43 by 7. This is what 3 by 7. This is a magnification. So magnification is coming to be positive. Now you'll do M is equal to HI over HO. So 3 by 7 is equal to HI upon HO. HO is positive, N is 4 centimeter. 4 centimeter. So HI is equal to 3 into 4 upon 7. And look at this. This is positive. So though you remember the positions when the image will be formed, when it will be positive, it will be negative, you know all that. But yet, what you are getting numerically, that makes a sense. What? This is coming to be positive. Positive means this image will be erect. When you're keeping all the signs properly, you got the magnification M with the correct sign. How you got the magnification M with the correct sign? Formula is minus V over U. You kept the value of V with the proper sign. You got it positive. You kept it positive. U was negative. You kept it negative. So negative becomes positive, and you got M is positive. When you got the value of M as positive, you keep that positive value here, and that is HI over HO. You kept the value of HO with the proper sign, positive 4. So you got the value of HI with the proper sign, that is, it is what? Positive. Is that clear? So this comes to be what? Positive. So in the lenses or in the mirrors, don't make any mistake in the sign convention. It has to be done like I did here. Right? Now see one very important concept I'm telling you. Look at this. Suppose in front of, behind the lens you keep a mirror. Behind the lens you keep a mirror, right? And they say when you keep an object at a distance 30 centimeter from here, oh, there's the object. And when you keep an object at 30 centimeter in front of the lens, its final image is formed at the same place. Its final image is formed at the same place. So students, here the concept is what? Here the concept is that if behind the lens there is a mirror and on the mirror rays are falling normal. Normal means perpendicular. रेज मिरर के ऊपर नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो जो रेज जैसे भी आए थे बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और इमेज वही बन जाएगा जहां पे ऑब्जेक्ट था. आई रिपीट दिस. अगर लेंस के पीछे एक मिरर है और उस मिरर के ऊपर रेज नॉर्मल आते हैं यानी परपेंडिकुलर, तो वो रेज जैसे आए थे बिल्कुल वैसे ही वापस चले जाएंगे और इमेज वही बन जाएगा जहां पे ऑब्जेक्ट था. ये तो कॉन्सेप्ट हुआ. अब इससे आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो? इन्होंने आपसे लगी 30 सेंटीमीटर दूर आपने ऑब्जेक्ट रखा और इमेज यही बन गया, तो लेंस की फोकल लेंथ क्या है? आप देखो, आपको एक चीज पता कि अगर इमेज यही बना है तो मिरर के ऊपर रेज नॉर्मली आए परपेंडिकुलर. अब मिरर के ऊपर जो रेज नॉर्मल आए हैं वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से बच्चों रिफ्रैक्शन के बाद रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कब होते हैं? जबकि ऑब्जेक्ट फोकस में हो. अगर ऑब्जेक्ट फोकस में होता, so after the reflection from the lens the rays will become parallel to the principal axis. That means object was at the focus, so focal length is what? 30 centimeter. It's a very important concept, right? Now see, now further I tell you about the refractive index. Refractive index of a medium is equal to velocity of light in vacuum upon velocity of light in that medium.
velocity of light in vacuum divided by velocity of light in that medium. All right. So refractive index, velocity of light, velocity of the light of the different colors in the same medium is different. मतलब ग्लास में वॉलेट कलर की वेलोसिटी अलग है, रेड कलर की वेलोसिटी अलग है, ब्लू कलर की वेलोसिटी अलग है, डिफरेंट कलर्स की वेलोसिटी सेम मीडियम में अलग अलग है. इसका मतलब एक तो ये हुआ कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होगा. तो यू शुड रिमेंबर दैट refractive index for the violet color is maximum and for the red color is what? Minimum. विबग्योर के ऑर्डर में वॉलेट कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है और रेड कलर के लिए ऐसे कम होते होते रेड कलर के लिए सबसे कम. अब देखो वॉलेट कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, राइट. तो इसका मतलब कि वॉलेट कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि वॉलेट कलर में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी? सबसे कम. वॉयलेट कलर में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी? सबसे कम. ठीक है ना. जब ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा तभी तो ये टर्म क्या आएगा? बड़ा आएगा. सो ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि वॉयलेट कलर में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी सेम ग्लास में, वॉयलेट कलर की लाइट की वेलोसिटी कम होगी और रेड कलर की लाइट की वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि रेड कलर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? कम. इज दैट क्लियर? नाउ सी, और जिस कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, जब मीडियम चेंज होगा तो उस कलर के लिए बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी. ठीक है. और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिखने का तरीका क्या होता है? सपोज दिस इज मीडियम 1 एंड दिस मीडियम 2. So when light ray is incident in the medium 1 and it goes in the medium 2, this is angle I and this is angle R. ये एंगल R है. ठीक है. ये 2 ऑब्वियसली डेंसर मीडियम है क्योंकि लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड हो रही है. तो साइन I अपॉन साइन R आप लिखते ये हैं साइन I अपॉन साइन R. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. सो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 मींस μ2 ओवर μ1. μ2 मीडियम 2 का वैक्यूम के रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और μ1 मीडियम 1 का वैक्यूम के रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है. और इसे टेक्निकली लिखने का तरीका होता है 1 μ2. सो 1 μ2 का मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिलेटिव. तो किस मीडियम का लिखना है? जिस मीडियम में लाइट जा रही है. लाइट सेकेंड मीडियम में जा रही है फर्स्ट मीडियम से, सो आपको μ2 ओवर μ1. जैसे यहाँ पे अगर ग्लास होता और यहाँ एयर होती तो आप इसे लिखते म्यू ऑफ द ग्लास अपॉन म्यू ऑफ द एयर. म्यू ऑफ द एयर यूजुअली हम 1 ले लेते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? म्यू ऑफ द ग्लास. लेकिन अगर उल्टा होता, लाइट एक ग्लास से एयर में जा रही होती, तो आप इसे क्या लिखते? म्यू ऑफ द एयर अपॉन म्यू ऑफ द ग्लास. ठीक है. साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पे आई और यहाँ आर होता, दैट विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ द एयर अपॉन म्यू ऑफ द ग्लास. तो म्यू ऑफ द एयर अगर 1 लेते तो 1 अपॉन म्यू आर, राइट. नाउ यू से कि जो नेक्स्ट इज कि प्रिज्म में जैसे आपसे बोला जब आप व्हाइट लाइट डालते हैं तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है ना. 7 कलर्स में क्यों? क्योंकि जिस कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, जिस कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो उस कलर की बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी. अभी हमने किया वॉयलेट के लिए. और जिस कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, रेड कलर के लिए, उसकी बेंडिंग सबसे कम होगी. तो बीच में ये सारे कलर्स आएंगे एंड अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, जिस स्पेक्ट्रम में वॉयलेट सबसे नीचे और रेड सबसे ऊपर होगा. सो अगर आपको ये डेटा देखो याद रखना है, अभी मैंने बताया आपको क्या कि सेम मीडियम में रेड कलर की लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी बिकॉज सी वेलोसिटी v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा. तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज. फ्रीक्वेंसी वो डज नॉट चेंज. तो अगर वेलोसिटी लाइट की ज्यादा है तो लैम्डा भी ज्यादा होगा. तो रेड कलर का लैम्डा ज्यादा होता है और वॉयलेट कलर का लैम्डा कम होता है. तो रेड कलर की वेलोसिटी ज्यादा होगी और वॉयलेट कलर की वेलोसिटी कम होगी, राइट. ये आपको याद रखना है. तो क्यों डिस्पर्सन क्यों होता है? आप बोलोगे कि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर द सेम मीडियम, so their bending is different, hence this happens.
तो ये तो हुआ बच्चों क्या, ये हुआ आपका स्पेक्ट्रम, जो कि एक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन इज ए फिनोमिनन ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्शन फिनोमिनन। ये बच्चों क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक ना। एक फिनोमिनन होती है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होती है, जब लाइट एयर में चलती है तो एयर के मॉलिक्यूल से या डस्ट पार्टिकल से, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनसे लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है, दैट इज स्कैटरिंग। और एक फिनोमेनन होती है डिफ्रैक्शन। एक फिनोमेनन क्या होती है, डिफ्रैक्शन। सो बच्चों डिफ्रैक्शन क्या है, जब लाइट एक नैरो स्लिट से पास होती है, जब लाइट एक नैरो स्लिट से पास होती है तो लाइट स्लिट के चारों ओर बेंड हो जाती है। लाइक एक नैरो स्लिट है, जहां पे आपने लाइट डाली, ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ना आ करके अब ऐसे चारों तरफ बेंड हो जाएगी। सो दिस बेंडिंग phenomenon of the light when it passes through a narrow slit is called what, diffraction। तो प्रिज्म में रिफ्लेक्शन काम आता है, स्पेक्ट्रम के फॉर्मेशन में क्या काम आता है बच्चों, रिफ्लेक्शन। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, जैसे एक लेंस का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। अब बोलोगे हमने इसका छोटा सा पार्ट कट कर दिया, ये आधा, इस छोटे से पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा, वो भी 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ केवल तब चेंज होगी जैसे आपने लेंस को ऐसे कट कर दिया। अगर आपने लेंस को ऐसे कट कर दिया, फोकल लेंथ ओरिजिनल की 30 थी, तो इन दोनों पार्ट्स की सेपरेटली इसकी भी फोकल लेंथ 60 हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर, और इसकी भी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। इन दोनों पार्ट्स की फोकल लेंथ सेपरेटली आ जाएगी 60 सेंटीमीटर ईच, राइट। लेकिन अगर आपने लेंस का एक छोटा सा पूरा पार्ट कोई भी कहीं से कट किया, ऐसे कट कर दिया, तो इस पूरे पार्ट की, इसकी छोटे से पार्ट की भी फोकल लेंथ क्या होगी, सेम 30 सेंटीमीटर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, लेंस से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसकी ब्राइटनेस, दैट इज इंटेंसिटी, जितने एरिया के थ्रू लाइट पास होती है उस एरिया के प्रोपोर्शनल। समझे आप मेरी बात, मैं बताता हूं। लुक एट दिस, जैसे ये एक लेंस है, इसका अपर्चर का रेडियस आर है, तो टोटल एरिया, देखने में तो ये आपको सर्कल दिखेगा ना, जब आप लेंस को ऐसे सामने से देखोगे तो सर्कल होगा देखने में। इसका अपर्चर का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। अब पूरे लेंस से आपने जो इमेज फॉर्म की, उसकी इंटेंसिटी आई है, ब्राइटनेस आई है, या इंटेंसिटी आई है। अब अगर बोला जाए इसका सेंट्रल पार्ट r/2 रेडियस का आपने ब्लैक पेंट कर दिया, इसे ब्लैक पेंट कर दिया, ऑब्वियसली r/2 रेडियस के पार्ट से लाइट पास नहीं होगी। अब लाइट पास कितने एरिया से होगी, पाई आर स्क्वायर बाई 4 एरिया से पास नहीं होगी, तो पास कितने से होगी, 3/4 पाई आर स्क्वायर से। समझ गए ना, ओवरऑल एरिया पाई आर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर बाई 4 से पास नहीं होगी, अब पास कितने से होगी, 3/4 पाई आर स्क्वायर से। तो पहले अगर इमेज की ब्राइटनेस आई थी, तो बाद में 3/4 आई होगी। आपने सेंट्रल पार्ट r/2 रेडियस का ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया था, ठीक ना। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। So this is what I had told you, the important things about the light. Now you see, now I'm telling you something about the electrical circuits. So students, electrical circuits में, इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में एक सबसे पहला कैलकुलेशन देखो ये है कि अगर आपसे ये बोला जाए कि जैसे करंट, यू नो, Q/T इज इक्वल टू I, है ना, तो बोला जाए कि अगर आपका 4 माइक्रोकूलम चार्ज पास हुआ, से 4 माइक्रोकूलम चार्ज पास हुआ इन टाइम t इक्वल टू 2 माइक्रोसेकेंड्स में, इन टाइम t माइक्रोसेकेंड्स में, तो करंट I कितना होगा, I हो गया आपका Q/T, सो दैट इज 4/2, दोनों माइक्रोसेकेंड्स में, तो कैंसिल हो जाएंगे माइक्रोसेकेंड्स, सो दैट इज व्हाट, 2 एम्पियर्स करंट हो गया। एक तो ये, दूसरी चीज कि अगर कहीं पे चार्ज Q पास हुआ 4 माइक्रोकूलम्स, तो उन्होंने बोला कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, कितने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना पास होगा, तो यू नो दैट इलेक्ट्रॉन का चार्ज E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू E, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू N इलेक्ट्रॉन्स, दैट मेक्स Q। सो इससे N की वैल्यू आ जाएगी
4 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम्स में है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इसे कैलकुलेट करोगे। 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ you'll calculate this. Now see, वैसे इस टाइप के कैलकुलेशंस फिर भी बोर्ड में भी उतने नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको माइक्रो सेकेंड्स, माइक्रो कूलम्स एक्सेट्रा के कैलकुलेशंस वो लोग यूजुअली नहीं देते हैं। बट अब जो पार्ट बोर्ड्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज व्हाट, एक तो आपको इस टाइप के कैलकुलेशंस में पूरा टोटल कमांड होना चाहिए। व्हाट, जैसे 10 वोल्ट्स की बैटरी और दिस रेजिस्टेंस इज से 4 ohms and this is 6 ohms, this is 3 ohms, means ki in one circuit there'll be some resistances in series, some in parallel. आपको किस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज है, किस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट है, ये कैलकुलेट कर। तो बच्चों इनका तरीका ये होता है कि आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे सब सीरीज पैरेलल के होंगे। आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, और उनका स्मॉलर सर्किट बनाते जाओगे, इक्विवेलेंट सर्किट। जैसे आपने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, दिस इज 4 ohms, दिस इज 6, और 3 का पैरेलल में जब कैलकुलेट करके निकालोगे तो 2 ohms आ जाएगा। 2 ohms ये आ गया। अब इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट आपने बनाया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया 10 volts एंड दिस 6 ohms। सो दैट मीन्स कि सर्किट की जो ओवरऑल करंट आई है, सबसे पहले आपने सर्किट की करंट आई कैलकुलेट की, आई बिकम्स 10/6, दैट इज 5/3 एम्पियर्स। अब आप इस करंट को ये देखो कहां कहां पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो 5/3 एम्पियर करंट है, 4 ओम में तो पूरी करंट जाएगी 5/3 एम्पियर्स, और इस 2 ओम्स के अक्रॉस भी क्या होगी 5/3 एम्पियर्स। तो इस रजिस्टेंस के अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कितना होगा, वोल्टेज वी 4 के अक्रॉस, आई इंटू आर, आई इज 5/3, आर इज 4, इज दैट क्लियर? सो दिस 20/3 ohms, दिस इज क्लियर ना, 20/3 ohms। आप समझ गए ना, इसकी करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज आपका आ गया आई इंटू आर, आई इज 5/3, आर कितना है 2, सो दिस इज 10/3 volts। कितना आ गया 10/3 volts। ऑल राइट, दिस व्हाट 10/3 volts। अब आप देखो ये रेजिस्टेंस किन दो से मिलके बना है, 4 और 3। एंड यू नो कि पैरेलल में क्या होगा, जो दो रेजिस्टेंस है उन दोनों के क्रॉस भी सेम वोल्टेज होगा जो इसके क्रॉस है। इसका मतलब आपको पता लग गया कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 10/3 volts। जो इस दोनों, इस 2 वोल्ट्स के क्रॉस है, 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज, सेम वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा, सेम वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। सो 10/3 volts इसके क्रॉस भी, और 10/3 volts इसके क्रॉस भी, है ना। अब आपको इसका वोल्टेज पता है, इसकी करंट निकालोगे, इस रेजिस्टेंस की करंट आ जाएगी I1, I1 विल बी V अपॉन R, सो 10/3 अपॉन R कितना है 6, सो दिस व्हाट, दिस बिकम्स यह रहेगा आपका 2 से 5/9 एम्पियर्स, दिस व्हाट 5/9 एम्पियर्स। ऐसे ही आप इसकी करंट I निकालोगे, I2, I2 विल बी व्हाट, इसका वोल्टेज 10/3 वोल्ट्स है, वोल्टेज इज व्हाट 10/3 वोल्ट्स, और रेजिस्टेंस कितना 3, सो 10/3 अपॉन 3, so that is what 10/9, this is what 10/9 amperes। so इस तरीके के, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया which might be a simple example, but the idea was कि कैसे करते हैं इसे। मतलब what, आपको थोड़ा सा बड़ा कॉम्बिनेशन होगा, मे बी 2 ब्रांचेस हैं पैरेलल में, दोनों में फिर कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में। आपको सबसे पहला काम क्या करना कि जो भी सीरीज पैरेलल में उन्हें सिंप्लीफाई करते जाओ और सबसे सिंपल फिगर बना के अल्टीमेटली करंट आई निकालो मेन सर्किट। फिर वो करंट आप देखोगे, एक अकेला रेजिस्टेंस उसमें जाएगा, दूसरे में जाएगा, उनका वोल्टेज निकाल लो। फिर आप वो वोल्टेज देखोगे ये किससे मिलके बना है, इन दोनों से मिलके बना है, तो वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी, वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी। जब आपको इसका वोल्टेज आ गया तो इसका करंट निकालोगे, इसका वोल्टेज पता है, इसका करंट निकालोगे। सो दिस इज अ वे टू सॉल्व दीज सर्किट्स।
ठीक है ना। बट आई हैव सीन कि ये कैलकुलेशंस बोर्ड्स में पावर से रिलेटेड कैलकुलेशंस आते भी हैं और बच्चों को इसमें क्लियरिटी नहीं होती है। सी व्हाट, जैसे आपसे बोला गया ये पावर से रिलेटेड कैलकुलेशन, पावर में पी यू नो देर आर थ्री इक्वेशंस फॉर द पावर, v इंटू आई स्केयर इंटू आर एंड v स्केयर बाई आर। तो जहां पे v और i नोन है आप इससे कर लोगे, i और r नोन इससे कर लोगे, v और r नोन है इससे कर लोगे। और अगर आप वोल्ट्स में v वोल्ट्स में लेते हो, i एम्पियर में, रेजिस्टेंस r ओम्स में, तो पावर किस यूनिट में आएगा, वॉट में। और 1 किलोवाट क्या होता है, 1000 वॉट्स, 1000 दैट इज 10 वॉट्स इज 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, अगर 1 किलोवाट, जैसे आप जब एनर्जी की बात करते हो, एनर्जी और हीट, सो दैट इज वॉट पावर इनटू टाइम टी। तो 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट इज वॉट 1 किलोवाट आवर। दैट मीन्स कि 1 किलोवाट पावर अगर टाइम की वैल्यू आप उसमें डाल दोगे, टाइम की वैल्यू क्या डाल दोगे, 1 आवर, 1 आवर मीन्स वॉट 60 मिनट्स, दैट मीन्स और 60 into 60 सेकेंड्स। ठीक है ना। सो अगर ये पावर पी 1 किलो वॉट है और टाइम आपने डाला 60 into 60, सो जो एनर्जी कंज्यूम्ड है दैट विल बी कॉल्ड व्हाट 1 यूनिट। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये कई बार कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा कि इन तीन में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर, आप जैसे आपसे बोला गया देयर इज अ बल्ब whose specifications are 240 volts 60 watts। मतलब मैन्युफैक्चरर ने बल्ब में ये डेटा लिख करके दिया होगा, ये 240 वोल्ट्स 60 वॉट्स है। इसका मतलब ये हुआ मैन्युफैक्चरर वांट टू टेल यू दैट व्हेन यू कनेक्ट इट अक्रॉस 240 वोल्ट्स इट विल कंज्यूम 60 वॉट्स पावर, राइट। जब आप इसे 240 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 60 वॉट्स पावर कंज्यूम करेगा। सो इसका मतलब नहीं कि 60 वॉट्स का बल्ब है तो ये कभी भी 60 वॉट्स पावर जनरेट करेगा, नॉट दैट। ये केवल तब 60 वॉट पावर कंज्यूम करेगा और जनरेट करेगा जबकि आप इसे 240 वोल्ट से कनेक्ट करोगे। यानी बल्ब में ना तो करंट आई फिक्स है, ना ही वोल्टेज फिक्स है, केवल बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस आर फिक्स है। जब मैन्युफैक्चरर ने आपसे बोला कि 240 वोल्ट्स से जब कनेक्ट करोगे तो 260 वॉट्स पावर देगी, इसका मतलब पावर P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। सो R इक्वल्स व्हाट V स्क्वायर बाई P, दैट इज 240 into 240 अपॉन 60, सो दैट इज व्हाट 960 ओम्स। तो इस बल्ब में, बल्ब हो या कोई भी पावर डिवाइस हो, हीटर हो, उसका उसके फिलामेंट का केवल रेजिस्टेंस फिक्स होता है जो कि आप P को V स्क्वायर बाई R से निकाल सकते हो, R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P से निकालो। अब अगर आप इस बल्ब के क्रॉस 240 वोल्ट्स अप्लाई ना करके कुछ और वोल्टेज लगाओगे तो ये डिफरेंट पावर देगा। हाउ विल यू कैलकुलेट दैट, जैसे आपसे बोला गया कि इस बल्ब को, जो ये वाला बल्ब है, हमने इसे 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब ये पावर पी रेस कितनी देगा, 20 के बाई आर। सो दैट इज व्हाट 100 into 100 डिवाइडेड बाई व्हाट 960 which you have calculated, this will generate so much of watts power। ठीक है ना। मैंने कई बार बच्चों को देखा ये कैलकुलेशंस गलत करते हैं कि पावर पी को वी इंटू आई, ठीक है ना, और पहले का आई निकाल लिया और बाद में वोल्टेज देखा उससे मल्टीप्लाई कर दिया। नो नॉट दैट, जब आप वोल्टेज चेंज करोगे तो करंट भी चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो किसी भी पावर डिवाइस में बल्ब हो, हीटर हो, फिलामेंट होता है, और आप मैन्युफैक्चरर के डेटा से आप उसका रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट कर लोगे। फिर आप इसे एक रेजिस्टेंस की तरह डील करो कि अगर 100 वोल्ट से कनेक्ट किया तो कितनी पावर देगा, इतनी पावर देगा। और जो मैंने बोला ना कि आपको पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर या वी इंटू आई क्या यूज करना। सो लुक एट दिस, ये तो जैसे आपके पास, आपने दो बल्ब सीरीज में है, दो बल्ब सीरीज में और कुछ वोल्टेज आपने अप्लाई किया। मानो एक बोला गया 100 वॉट्स का है और एक है 60 वॉट्स, 100 वॉट्स एंड 60 वॉट्स। तो मैंने यहाँ पे वॉट्स में दे दिया, वो लोग रेजिस्टेंसेस दे सकते हैं R1 R2 करके, ठीक है ना। मतलब इसी का मैंने बल्ब का इसलिए पूछा कि मेरा एक और क्वेश्चन उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके थ्रू हो जाएगा। सो आई गिवन यू द बल्ब, व्हाट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जैसे इसमें बोला गया कि 100 वॉट 60 वॉट्स, अब कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करे,
कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? आप देखो, बल्ब इज ओनली ए रेजिस्टेंस, तो और P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। मैन्युफैक्चर ने दोनों बल्ब सेम वोल्टेज के लिए बनाए हुए, 240 वोल्ट्स के लिए। मैन्युफैक्चर क्या लिखते हैं? 240 वोल्ट, 60 वॉट्स, 240 वोल्ट्स, 100 वॉट्स। तो मैन्युफैक्चर ने जब उसका आप 240 दोनों में डालोगे, जिसका पावर ज्यादा है, जिसका पावर ज्यादा, उसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। यानी यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका R2, तो R1 विल बी व्हाट? लेस देन R। आप समझ गए? R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। मैन्युफैक्चर ने जब डिजाइन किया होगा बल्ब, तो उन्होंने दोनों सेम वोल्टेज के लिए बनाए होंगे, क्योंकि घरों में जो वोल्टेज आएगा सारे मैन्युफैक्चर उसी वोल्टेज के लिए तो बनाएंगे। अगर घरों में 240 वोल्ट्स की सप्लाई आती, तो सारे मैन्युफैक्चर 240 वोल्ट्स पे अपने बल्ब की रेटिंग डिसाइड करेंगे कि 60 वॉट से 100 वॉट से। तो वोल्टेज सबके लिए सेम हुआ। इस सर्किट में वोल्टेज सेम नहीं होगा। मतलब जब बनाया गया था, तो वहां पे रेटिंग बताने के लिए वोल्टेज भी क्या था? सेम था। मतलब आर कैलकुलेट करने के लिए 240 इसका भी और 240 इसका भी। तो जिसकी पावर बड़ी है, उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अब आपको इन दोनों की ग्लो कंपेयर करनी है। जब आप सीरीज में लगाओगे, तो ये थोड़ी कि यहाँ पे आपने कुछ वोल्टेज लगाया तो दोनों में सेम वोल्टेज आएगा। इनके रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं। जब इनके रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो आई तो सेम होगा सीरीज में, और वोल्टेज क्या होता है? आई आर। तो इसके क्रॉस डिफरेंट वोल्टेज आएगा और इसके क्रॉस डिफरेंट वोल्टेज आएगा। आएगा ना? अब जब वोल्टेज भी अलग है, आर भी अलग है, तो आप कैसे कंपेयर करो कि किसका वी स्क्वायर बाई आर बड़ा और ज्यादा? पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत है। आप ये सोचो, सीरीज में सेम क्या होता है? आई। तो आप पावर के लिए फॉर्मूला क्या यूज करो? आई स्क्वायर इंटू आर। आई तो दोनों में सेम होगा, क्योंकि सीरीज में। आर किसका बड़ा है? इस वाले बल्ब। तो इसके क्रॉस क्या होगा? ज्यादा पावर जनरेट होगी। तो जब आप सीरीज में कनेक्शन करते हो, तो आई स्क्वायर आर से कंपेयर करोगे, चाहे ये बल्ब्स हो और चाहे आपके रेजिस्टेंसेस। सीरीज में अगर कनेक्शंस हैं R1 R2 के, तो आप आई स्क्वायर R1 आई स्क्वायर R2 से कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे ये बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा पावर कंज्यूम होगी। और पैरेलल में क्या होता है? घरों के कनेक्शंस पैरेलल में। तो पैरेलल में जब आप करते हो, तो पैरेलल में सबके क्रॉस वोल्टेज सेम। तो आप कंपेयर कैसे करोगे? वी स्क्वायर भाई आर से। तो जिसका आर छोटा होगा, वो ज्यादा ग्लो करेगा। और आर छोटा होता है जिसकी पावर, मार्क्ड पावर ज्यादा है। तो अगर ये दोनों पैरेलल में लगे होते, तो 100 वॉट ज्यादा ग्लो करता और 60 वॉट्स कम ग्लो करता। सो ये मैंने बल्ब के लिए बताया जरूर, बट स्टूडेंट्स आपको जब क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे, तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है, इज दैट क्लियर? तो आप उनकी इंडिविजुअल पावर निकालने के लिए आई स्क्र R1 आई स्क्र R2 से करोगे। अगर पूरी ओवरऑल की पावर निकालनी है, तो आप R1 R2 को सीरीज में मिला करके एक रेजिस्टेंस बना लो, और फिर आप आई स्क्र इंटू आर से निकाल लो। जब वोल्टेज V लगाया गया है, तो अब तो एक ही रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब आप R1 R2 सीरीज में या R3 जितने भी है सीरीज में, जब आपने एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया और वोल्टेज नोन है, तो फिर आप V स्क्र बाई आर से कर दो। इज दैट क्लियर? और पावर में अगर आप पावर कंपेयर करना रेजिस्टेंसेस में पैरेलल में, तो V स्क्र बाई R1 या V स्क्र बाई R2 एंड ऑल, उस तरीके से कंपेयर करो। So students, in today's session, this much, and I'll send you one more session in which I'll clear the remaining concepts and uh, numerical concepts of the 10th board physics. All right, students. So all the best. Keep preparing well.